So, welcome dear students and welcome to this class of international relations where we talk about the theory of liberalism. So, before I would like to start talking about the theory of liberalism, I would want to tell you one simple fact that took place, which was we all remember that in February, 14th of February, there was Pulwama attack. And Pulwama attack ke just baad both India and Pakistan in the month of February itself, immediately, they closed off their airspace. Airspace मतलब कि अब इंडिया का कोई भी फ्लाइट या फिर इंडिया से कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान के एयरस्पेस से नहीं जा सकता है. So any of the flights that are going through to the Gulf or Europe or UK, US, unko they will have to change the route. They can't use the Pakistani airspace and vice versa. अगर पाकिस्तान का कोई फ्लाइट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया जाना चाहता है तो वो इंडियन स्पेस को एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकता है. सो फाइन इनफ कि ठीक है ये हुआ. बट व्हाट वाज द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट? द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट वाज कि इंडियन एयरलाइंस को 300 करोड़ का नुकसान फरवरी में हुआ. पाकिस्तानी एयरलाइंस को 800 करोड़ का हुआ. एयर इंडिया को बिकॉज मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया टू यूएस इट इज ऑलमोस्ट 22 आवर्स का फ्लाइट जर्नी. इट विल टेक 2 आवर्स मोर बिकॉज यू हैव चेंज द ट्रैक. तो एयर इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा था ऑन अ पर डे बेसिस. दिस इज वन फैक्ट कि how does military skirmish or confrontation infect economically. The second thing is कि भले ही आप कितना भी सुन रहे हो during the time of COVID at least कि चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है and they're not going to accept each other's trade products. लेकिन आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज आया है कि चाइना और यूएस का ट्रेड टॉक्स जो है it is at the highest. It is at the highest right now. The economic relationship is very good right now. Then सऊदी अरेबिया ने ये ओपन आज किया कि non-US dollar currency maybe they are ready to sell their oil now, which is a big step because आज तक जितना भी trade का deal होता था it was mostly in the US currency dollar, which is the universal currency. हमारे जो Speaker of the Lower House हैं ओम बिरला, he is right now in Kenya discussing India-Kenya relations. कल जो है साउथ कोरिया के साथ हमारा bilateral summit हुआ था, 5th bilateral summit, which was in Seoul, talking about India-South Korea relations. At the same time, जब Brexit की शुरुआत हुई, and Brexit की जब शुरुआत हुई, no one really knew what Brexit was and what will happen and how it will be implemented. लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा बना ब्रेक्जिट में और जो अभी तक मुद्दा है which is कि जो आपका नॉर्दर्न आइलैंड और आइलैंड के बॉर्डर को आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे. तो ये एस्टैब्लिश करने में भी इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क. स्पेसिफिकली बहुत इसमें इकोनॉमिक कैपिटल इन्वेस्टेड होगा. तो इसके लिए जो है कल ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी और यूरोपियन कमीशन के हेड ने वर्चुअली टॉक्स किया. इसके मीनवाइल जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके लिए जर्मनी, फ्रांस, यूएस, they all are sending their missiles or giving billions of dollars of aid. इसके साथ many things are happening at the same time which are related to the monetary aspect of bilateral ties. कि what are the monetary aspects of bilateral economic ties? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था which was about realism, which had two assumptions. पहला assumption realism का ये था कि it is drawn from human nature or the nature in general, that it is the situation of man eats man. It is a zero-sum game. If you don't destroy the other party, you will be destroyed. And ये पूरा जो मतलब the concept जैसे मैकियावेली का था कि जो राजा है उसको a fox and a lion
lion for power and fox for deception होना पड़ेगा. और उसके बाद जो है Kenneth Walls came up with the theory of structural realism या फिर neo-realism जिसको हम बोलते हैं. Neo जिस भी चीज के आगे लग जाए इसका मतलब नया. तो neo-realism which was about कि it is not about human nature, it is not about warfare, but it is about the structures in which we work. हमारे पास कोई international policing system है नहीं, UN is not that, तो इसीलिए wars जो हैं they are bound to happen. But most of the time जो realist scholars होते हैं, most of the realist scholars को काफी critique किया जाता है. They are often critiqued and they are often questioned. किसी को अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा. Please check once. All of you are mute. So they all are critiqued a lot because they do not want to see the entire world in black and white. And किसी भी country का अगर bilateral relation होता है किसी भी और country के साथ, तो उसमें बहुत सारे factors involved होते हैं. Right. It is not just about जैसे for example अगर एक couple है तो अगर दोनों realist हैं तो उनके लिए it is कि या तो we are a couple और या तो it is complete breakup. या तो plus नहीं तो minus. That is simple, black and white. But you all know that even in relationships there are so many aspects of a relationship. It is not just about अब क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मुझे तो ये बोलना पड़ेगा ना डियर. तो it's not just about intimacy, it is about intellectual component and emotional component and friendship, companionship and so many things, right? तो लिबरलिज्म ने कोशिश किया इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने का तरीका और बढ़ाने का और उसको समझने का from a better perspective. As I told you, the reference book that we are utilizing here is International Relations Theory by Jennifer Sterling Falker. And the second edition है इसकी किताब का, it focuses primarily on the US invasion of Iraq in 2003. तो उसी invasion को किस case study से समझ रहे हैं उसके बारे में ये बात होगी. तो liberalism है क्या? Liberalism आपके international relations का theory है, जिसको शुरुआत में बहुत सारे आपके स्कॉलर्स आए, इसमें रूसो भी हैं. यूल से कि रूसो रियलिज्म में भी थे, बट इनका जो पॉइंट लिबरलिज्म में भी आता है, आई विल टेल यू. देन एडम स्मिथ, इमैनुअल कांत, जॉन लॉक, अदर्स. तो व्हाट एग्जैक्टली इज देन लिबरलिज्म? सबसे पहला तो लिबरलिज्म इज अ थियोरेटिकल कॉम्पिटिटर फॉर रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म. इनफैक्ट रियलिज्म के बाद लिबरलिज्म आया एंड लिबरलिज्म के रिस्पॉन्स में न्यू रियलिज्म फिर केनेथ वॉल्स ने दिया था. ये भी नेशन स्टेट को एक सेंट्रल एक्टर ऑफ एनालिसिस देखते हैं. दे डोंट लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स और दे डोंट लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम और द इंटरनेशनल सिस्टम. मार्क जैकर एंड रिचर्ड मैथ्यू का ये कहना था कि slowly and slowly international relations are gradually becoming transformed. कोई भी चीज स्टेटिक नहीं रहती है. किसी भी टाइप का कोई भी पैराडाइम, कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्टेटिक नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है, वो फ्लूइड होता है. और अब जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब gone are the times when gathering, hunting and primitive social behavior of killing and warfare were active. Now we are in a phase जब ज्यादा human freedom चाहिए, आपको peace, prosperity और justice चाहिए. ये चीजें ज्यादा important हो रही हैं और liberalism इन चीजों को ध्यान में रखता है. तो liberalism का क्या basically the entire idea was? इसमें एडम स्मिथ, इमैनुअल कांत का बहुत बड़ा योगदान है. इसको ऑल्टरनेटिव टू रियलिज्म ही देखा गया बिकॉज रियलिस्ट हमेशा मिलिट्री वॉरफेयर की बात करते थे एंड इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मिलिट्री वॉरफेयर से सारे सॉल्व हो जाएं. आपके कुछ भी स्कर्मिश है या फिर कुछ भी नेगोशिएशन है वो मिलिट्री वॉरफेयर से ही सॉल्व हो जाए, नॉट नेसेसरी. एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस जो है ये आंसर नहीं है.
अब आपको you need to have consent of your citizens also when you go to war. ऐसा नहीं है कि any country can declare war. You need to have consent because the media has become so powerful that you will get to know what is happening in the other country, wherever your country is invading. And आज का दिन बहुत important इसलिए भी है, apart from the fact that today is like the death commemorative ceremony of Harivansh Rai Bachchan, it is also very important कि जो First World War के बाद Treaty of Paris जो था वर्साई में साइन किया गया था in 1919, that was signed on 18th of January. तो Immanuel Kant जो है, he gave this very interesting idea of perpetual peace. Now what is perpetual peace? Perpetual peace का मतलब होता है जो हमेशा रहे. Perpetual is something like our hope, or something that you believe in God, or something which continues for a long time. तो इमैनुअल कांत ने इसका आइडिया दिया था, और इमैनुअल कांत एक जर्मन फिलोसफर थे, एंड ही वाज बोर्न इन 1724. 1724 को 22nd of April को इनका हैप्पी बर्थडे था, एंड 12th of February 1804 में ही passed away. Now you will ask me कि आप हमेशा क्यों birth dates और ये सारी चीजें बताती हैं, because when you are trying to understand a philosopher, you should know कि वो किस टाइम फ्रेम में काम करते थे, उनका सोच किस टाइम फ्रेम का है. So this time frame is your 1720s to 1800s का, and he was German philosopher and one of the Enlightenment thinkers. Now what is Enlightenment? So सबसे पहले आपका फ्लोरेंस में, जहां से आपके मैकियावेली and Leonardo da Vinci, the one who painted Mona Lisa, and Michelangelo, who was very famous for his sculptures, they were born. उस समय आपका ये 1500 की बात है, जब रेनेसा का मूवमेंट इटली से शुरू होता है, where they use art as a form of critique and develop new forms of art and architecture and all of it. And there's every bit of history which is involved with every form of architecture. There is a bit of history. In fact, there's all of history. अगर आप सिर्फ किसी architecture पे जाएं, you will not know the language it is communicating with you if you don't know the history of it, if you don't know the context of it. So enlightenment का सबसे शुरुआत जो होता है, ये आपका 18th 19th century में होता है. It is somewhere around your industrial revolution. And enlightenment में शुरुआत क्या होता है? What is the central idea? The central idea of enlightenment was कि it is not ज्ञान की प्राप्ति and nirvana, but in this context enlightenment का मतलब था कि questioning the existence of what you don't have evidence of. So in very simple terms, we are religious, we follow some religion, we follow God, but do we have any evidence of God? कभी किसी ने भगवान को देखा है? अगर आपने देखा तो जरूर बताइए मुझे कैसे दिखते हैं. रिफॉर्म मूवमेंट्स और क्रिटिक विद इन रिलीजन तो सारे रिलीजन में हुआ. हर रिलीजन का अपना इंटरनल फ्रैक्शंस था. जैसे हिंदुइज्म में देयर वाज दिस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट्स, जिसमें विष्णु और शिव के लिए अलग अलग मूवमेंट शुरू हुए, एंड शक्ति मूवमेंट व्हिच वाज फॉर वर्शिपिंग दुर्गा, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फीमेल डीटी भी शुरू हुआ. तो ये सारे चेंजेस तो हुए, बट इनलाइटनमेंट का शुरुआत बहुत स्ट्रांगली हुआ बिकॉज दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. जैसे हम जानते हैं कि ontology is basically कि how is knowledge produced and how do you have knowledge of something. So how do you have knowledge of God? And how do you distribute the various knowledge systems to understand what God is? तो इमानुएल कांत ने वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत बड़ा योगदान इस तरीके से दिया, एंड ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने ये भी बोला कि स्पेस और टाइम सिर्फ इंट्यूटिव है, एंड जो एक्सपीरियंस होता है वो एक फैक्टर होता है जो आपको बताता है कि what exactly is real and what is not real. And
कोई भी चीज उसमें संपूर्ण नहीं है. It is on the basis of how you look at it. Kant gave the idea, by the way, today, 18th of January को 1871 में your German empire will be established also. इसीलिए आज का दिन बहुत important है. तो being German himself, he gave the idea कि democracy is the solution. And जो countries democratic हैं वो कभी एक दूसरे से war पे नहीं जाएंगी. Enlightenment ने इस चीज को क्वेश्चन किया कि डेमोक्रेसी में देयर हैज टू बी अ सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट. यानी कि आपके जो भी प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, दे शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड दे शुड नॉट हैव एनी रिलीजियस connection or religious bias. They are free to practice their religion, but in their private space. तो ये मुद्दा क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. तो जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे फूको ने ये बताया कि जब उन्होंने अपनी किताबों में लिखने की शुरुआत की कि किस तरीके से अगर फ्रांस में जब मोनार्की थी उसके अगेंस्ट कोई अगर वहां के मोनार्क को मारना चाहता था या क्षति पहुंचाना चाहता था तो उसको और वो पकड़ा जाए, और वो मोस्टली पकड़ा जाता था. तो मोनार्क के खिलाफ आप क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव बीन ऑर्डेन्ड फ्रॉम गॉड, सिलेक्टेड बाय गॉड, एंड दैट ब्लड लाइन, तो दैट डायनेस्टी एंड रॉयल फैमिली इज वेरी सेक्रेड, यू कैन चेंज इट एंड क्वेश्चन इट. अब कोई अगर उनके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है तो व्हाट फ्रांस यूज्ड टू डू वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज दे यूज्ड टू जस्ट कैच दैट पर्सन, उसको हॉर्स कार्ट व्हील से टाई करते थे, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था उस टाउन के, उस सिटी के, तो सेंटर ऑफ द सिटी में ये होता था, एंड दे वुड स्टार्ट टियरिंग द पर्सन्स हार्ट, body, taking out organs, and the person is still alive and bleeding profusely. और उसके बाद when he was tied or she was tied to the cart, तो horse उसकी body को लेके पूरा गांव या शहर घूमता था, and then eventually the person will die. इसका ये reason था, there was a reasoning behind it, to make a spectacle of death, which was कि your body, even today in modern state politics, आपका शरीर एक battle ground है. The moment you are born, you need a birth certificate. You die, you need a death certificate. There are issues on abortion and suicide or whatever. तो किसी को पनिश अगर करना है, अगर आप पूरे सिटी के सामने उसको इस तरीके से पनिश कर रहे हैं और उसके बॉडी को पनिश कर रहे हैं, instead of just capital punishment or life imprisonment, you are making a spectacle of death and creating horror inside the hearts of everyone else जो शायद monarchy को abolish करने के लिए कोई और प्रयत्न करने की कोशिश करेगा. People didn't have the right to voice their opinions, and it was very very disturbing. And जब वो इंसान मर जाता था तो फिर उसके बाद उसकी लाश को फिर सिटी सेंटर में रखा जाता था 3-4 दिन के लिए, एक वीक के लिए, so that everyone is aware कि ऐसा हुआ है. This was the form of punishment and disciplining which Foucault told about the French monarchy. तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होने के काफी सारे रीजंस होते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरू होता है, वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज कि फ्रांस इज इन अ लॉट ऑफ डेप्थ. वहां पे काफी फैमिन आ रहा है, लोगों को खाने को नहीं है. जो लुई द 16 है, उनकी बीवी मैरी एंटोनेट इज द सिस्टर ऑफ द किंग ऑफ और मोनार्क ऑफ ऑस्ट्रिया. सो यू मस्ट हैव रेड दिस वेरी फेमस कोट की जब लोग आ रहे हैं स्टॉर्मिंग टुवर्ड्स द कैसल,
So she says कि अच्छा क्यों आ रहे हैं, let them have cake. मतलब she was so elite and so alienated from the reality कि she was like कि क्यों ये they don't have food to eat, let them have cake. अरे भाई उनके पास केक होता तो वो क्यों आते? So the point is this, और एक बहुत funny चीज है which I realized and discovered recently, couple of years back, was कि there's something called as Marie Antoinette syndrome. Marie Antoinette was having long black hair, real black hair, or after her husband was guillotined during the French Revolution, और उसका जब दिन आया कि next day आपको guillotine किया जाएगा, so she came under so much of stress कि रातों रात उसके सारे के सारे बाल जो है वो सफेद हो गए. So you'll see a lot of people who are very young having white hair. So it can be because of stress, or isko biology has called it as the Marie Antoinette syndrome. Anyway, तो Kant भी एक German scholar थे जिन्होंने Enlightenment में question किया कि there has to be freedom, human dignity, brotherhood, solidarity, and these are important. These are very, very important. And कोई भी दो डेमोक्रेटिक कंट्री कभी एक दूसरे से वॉर पे नहीं जाएगी. तो ये मॉडर्न एरा के बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे. इन्होंने फिलोसफी को सोचने का तरीका रेवोल्यूशनराइज किया, क्योंकि फिलोसफी की शुरुआत ही थियोलॉजी से हुई थी. थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन. तो पहले कुछ इंडिविजुअल फिलोसफी एज सच सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था. आई एम टॉकिंग अबाउट 1400s, 1500s, 1600s. फिर फिलोसफी का एक सब्जेक्ट आया which was कि there can be thoughts which can be different from the idea of God. You have to separate God. You can have ideas on freedom, mortality, solidarity, brotherhood, fraternity, democracy, जिसमें there is no role of God या religion का कोई एंगल नहीं है. तो इन्होंने फिलोसफी को रेवोल्यूशनाइज किया, and काफी सारे philosophers को he gave a morsel of thought, and he was the first person to use the term race in the way that we use and understand today also. So Kant had this discourse of understanding also. Kant ने reasoning के ऊपर भी काफी बात की, and he said कि everyone is a rational creature. Why do you believe that people are lustful or selfish, or they would want to kill each other and always compete? If you rationally look at anyone, you will understand their SWOT analysis. SWOT analysis का मतलब होता है strength, opportunity, weakness and threat. तो अगर आप किसी इंसान को rationally देखने की कोशिश करेंगे तो आप समझ में आएगा आपको कि वो हर इंसान अपने हिसाब से reason और knowledge use करता है, जितना भी उसका capacity हो. And कोई भी जो, and he was an empirical scholar, तो empirical या positivist जो scholars हैं, जैसे मैंने आपको बताया, they believed in the fact कि you have to logically experience a thing and उसको value neutral होके, objective होके, without any bias, you have to explain it. तो इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी, critique of pure reason, critique of practical reason, critique of power of judgment, and very जर्मन भाषा बहुत मुश्किल है, तो फिर इसके बाद इनका translation भी हुआ. और रूसो और कांत में क्या अंतर था अपार्ट फ्रॉम कि 12 साल का डिफरेंस था इन देयर बर्थ. रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फेवर में थे कि जैसे अगर कोई छोटा पॉपुलेशन है, स्विट्जरलैंड हो गया या कहीं, कि लोग वोट दे रहे हैं, देन दे एवरीवन सिलेक्ट एंड एवरीथिंग एल्स. बट जैसे कि आप देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल देन सिलेक्ट योर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. इसके लिए इमैनुअल कांत believed in the representational system, and he believed that direct democracy is not also possible in the longer frame of time because population will keep on increasing and it is very difficult to find some kind of consensus through direct democracy. तो इन्होंने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी. इन्होंने बोला कि जो दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, आपको जो रियलिस्ट हैं उनको हमेशा डर लगते रहता है कि वॉर होगा, वॉर होगा. तो जरूरी नहीं है. जो कंट्री डेमोक्रेटिक है वो दूसरी कंट्री पे वॉर नहीं करेगी.
तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, इतना सारा वॉर हो रहा है। तो कांत का हमेशा रहेगा कि इनमें से कोई एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक डिक्टेटरशिप है, या फिर एक नेसेंट डेमोक्रेसी है, या उस तरीके का। तो ही हैड वेरी वेरी हाई बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। एट द सेम टाइम आपके बहुत सारे स्कॉलर्स होंगे जो who would specifically French who would say कि democracy is nothing but dictatorship of the majority, and democracy is not one size fits all approach. एक टाइप का डेमोक्रेसी आप नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन ऑल द अदर कंट्रीज। यूएस का डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत ही अलग है, इट हैज अ बैलेट सिस्टम। इंडिया का बहुत अलग है, बोथ आर डेमोक्रेटिक। यूके के पास मोनार्की भी है, एंड इट इज राइट नाउ वेरी famous because of William writing Spare and making $33 million out of it. But हर कंट्री का डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से होता है, और डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट इक्वालिटी एज सच, क्योंकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स जो जीतेंगे वो अपना स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, एंड इट नीड नॉट अपीज द माइनॉरिटी, बट ही गेव दिस आइडिया। दूसरा चीज जो लिबरलिज्म ने ध्यान में रखा, और वो ये बोला था कि क्योंकि लिबरलिज्म का शुरुआत और ये सब इनलाइटनमेंट के साथ कोइंसाइड करता है, एंड इनलाइटनमेंट के साथ कोइंसाइड करता है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मॉडर्नाइजेशन का एक नया फैक्टर लेके आता है। इट स्टार्ट्स विद द आइडिया दैट industries and factory system is creating more product, and that is much more profitable, and ये मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज यूज होंगी और गुड्स प्रोड्यूस होंगे। एक नैरेटिव है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिसको हम बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सोचते, बट इफ यू थिंक अबाउट the division of labor between a man and a woman, कि ये धारणा कहाँ से आई कि आदमी जो है पैसे कमाएगा और औरत जो है घर में बच्चे पालेगी। How did this concept come to the being? एग्रीकल्चर में भी ऐसा था, इवन आपके गैदरिंग हंटिंग सोसाइटीज में भी ये था कि हंटिंग वाज डन प्राइमरली बाय मेन एंड गैदरिंग बाय विमेन। ये सोसाइटी सारा बाइनरी में ही जेंडर को देखा था। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो बहुत बड़ी एक चीज हुई विच वाज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। पहले अगर एक नीडल को बनाने के लिए आपको 19 लोग चाहिए होते थे कि स्टील के शीट से काट काट के उसको छोटे छोटे पॉइंट से उसको फ्रेम करके फिर उसको शार्प करके उसको शाइन करके नीडल और सेफ्टी पिन और ये सब बन रहा है, तो एक सेफ्टी पिन या नीडल बनाने के लिए यू नीडेड अराउंड 19 पीपल। अब मशीन आ गए तो यू नीड 1 पर्सन है ना मशीन, और आपको 1 मिनट में 1000 सेफ्टी पिन और पिन्स बन रहे हैं। तो बाकी के 18 लोग कहाँ गए? So this happened in UK. There was massive unemployment, and unemployment होगा तो crime, poverty, suicide बढ़ेगा ही. All of these things will happen. But one thing which a lot of scholars don't talk about, and they started talking about only in 1960s, मतलब 200 साल बाद after industrial revolution, and I'll tell you what it is. So one of the factors that a lot of scholars started talking, and specifically women scholars started talking only about 1960s,
जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था in 1750s. The fact was कि most of the people who were who faced job loss were women in your industrial revolution. Most of them were women. And ये जो division of labor start हुआ in a very structural and systemic way कि आदमी काम करेगा and औरत घर संभालेगी started in a structural form in the industrial revolution. A lot of women lost their jobs. So liberalism, coming back to it, मॉडर्नाइजेशन का एक नया तरीका बताया. इसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूके कर पाएगा. इट विल बी द हब ऑफ इट. इसीलिए वो कॉलोनियल पावर बन पाया. जबकि colonialism was started in 1400s by Portuguese and Dutch. Vasco da Gama will come to the Kochi Calicut airport. Port, not airport. In 1498. गोवा तो फिर वो 10 साल बाद जाएगा. And Goa was your Portuguese territory. उसी तरीके से Pondicherry is taken over by France, and ये सारी चीजें. Goa will become part of India as we have discussed only in 1961. तो लिबरलिज्म ने यूके को काफी मदद किया. यूके से पहले एम्स्टरडैम वाज द हब ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. लेकिन जब मशीन प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज आई, देन यूके, लंदन बिकेम द हब ऑफ इट. एंड लंदन खुद मैसिव अर्बनाइजेशन से एक्सपीरियंस किया. And then they started the entire process of colonialism, that finding out many other countries where they can find labor. तो slavery का शुरुआत, and raw materials जो वो use करेंगे to process it. तो modernization का मतलब ये भी होता है कि it is not development. It is not development. Mostly सब लोग development के साथ confuse होते हैं, but नहीं. जैसे for example, मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ, लिबरलिज्म पढ़ा रही हूँ, और मैं आपको सारा नोट्स दे दी हूँ, और आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप उसमें मेरा नोट्स पढ़ के लिख दें एकदम, और आप एकदम टॉप कर जाएं. तो eventually if you think about it, you didn't actually gain out of it. It was your dependency on me. लेकिन अगर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ and I keep making you ask notes and I make you correct and I teach you कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, I'm empowering you. Empower मतलब किसी का position से उसको उठाना और उसको ज़्यादा choices और freedom देना. And then you pass your examination and then you crack good marks. That is development. तो भले ही इंडिया में ब्रिटिश ने बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल्स और ये सब शुरू किया, but these were, they never taught us the art of manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग आपका लिवरपूल और मैनचेस्टर में ही होता था. It used to happen over there. So modernization started and it created this entire nexus in which you had core countries which were more modern and developed and technologically advanced, and the other dependent countries which were dependent on it. और ये एक पैराडाइम शुरू होता है. तो क्योंकि अब आपकी कंट्रीज जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और ग्लोबलाइजेशन जो 91 में शुरू होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह बीइंग द प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें फिर और कॉन्सेप्ट आता है विद द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ फेथ. When you can have faith, जो आपके यूरोपियन एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स थे जैसे जॉन लॉक एंड रूसो एंड कांट, उनका ये कहना था कि when you had faith on metaphysical or abstract entity like God, जिसको कभी आपने देखा नहीं है, तो how can you not have faith on human reason जो आप every day encounter करते हैं? And you have to believe in humans, and you have to believe in the power of rationality and unka logic, and not believe that everyone is out there in kill or get killed kind of scenario. तो कांतियन व्यू ये था कि जितनी भी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज हैं वो ज्यादा पीस लाने की कोशिश करेंगी, कॉपरेशन लाने की कोशिश करेंगी, वो पैसिफिस्ट होंगी,
एंड अपने और दूसरे कंट्रीज के साथ फॉरेन रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस लाने की कोशिश करेंगी इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन वॉर विद ईच अदर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया को 300 करोड़ का लॉस हुआ इन फरवरी 2019 और पाकिस्तान को 800 करोड़। तो हर वॉर का इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, तो ये इकोनॉमी के ऊपर काफी ध्यान दिया लिबरलिज्म ने। उन्होंने इस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया कि जो आपकी कैपिटलिस्ट मार्केट्स अब ग्लोबलाइजेशन के बाद और ये सारी चीजों के बाद एवर परमिएटिंग हो गई हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी, लाइक फ्रांस, जर्मनी, यूएस, दे आर सेंडिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी टू यूक्रेन। ईरान का न्यू ईयर है इन मार्च, 21st of मार्च को, उसको नौरूज बोलते हैं। तो रशिया इज सेंडिंग टैंक्स एंड मिसाइल्स टू ईरान। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान हो रहा है, हम रफाइल ले रहे हैं। सो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वॉरफेयर एंड डिफीटिंग द अदर, इट इज ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो एंड हैविंग इंटरनेशनल कॉपरेशन, क्योंकि उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, वॉर से आपको लॉस होगा। एंड there are many things which shape the bilateral relations between countries, जैसे level of education क्या है, उनका values और interest क्या है। इंटरनेशनल कॉपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपका यूएन एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, एंड ये सारे फोकस करते हैं कि कैसे पीस जो है वो परपेचुएट करे। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड कि ये यहाँ पे वॉरफेयर नेचुरल है और यही होगा, दो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेचुरल, why don't you change your lens and look at it ki in the international world system you will have peace, which is the natural state of human beings and states, and warfare के बाद भी peace आएगा ही। तो लिबरलिज्म अपना पहला अजम्पशन करता है और वो ये बोलता है कि अगर दो कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करती हैं तो ओवर टाइम उनको ज्यादा फायदा होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग एट वॉर विद ईच अदर। उनको उन्होंने ये बोला कि हाँ ठीक है, रियलिस्ट पावर पॉलिटिक्स और रियलिस्ट नैरेटिव समझने का जो था आपका पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये 19th सेंचुरी से पहले यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, इट मेक्स सेंस। बट 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस हुए, एनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सो मच, कि अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स को आप पुराने लेंस से नहीं देख सकते हैं। अब ग्लोबल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट मार्केट सारे आपस में इंटरट्वाइंड हैं। जैसे 2023 इज बीइंग कॉल्ड एज द ईयर ऑफ रिसेशन, जो यूएस में शुरू भी हो चुका है, और इतने सारे ले-ऑफ्स आप जहाँ पे देख रहे हैं कि हो रहे हैं इन सो मेनी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पीपल आर गेटिंग लेड ऑफ, द इम्पैक्ट ऑफ इट विल बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस में हो रहा है, तो इट इज लिमिटेड बाय द यूएस टेरिटरी। तो आपको अगर फ्री ट्रेड करना है, अगर आपकी कंट्री को अपना नेशनल इनकम बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो आपको इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ ओपन होना पड़ेगा। You cannot be like Donald Trump and say make America great again, MAGA MAGA, and economic protectionism ही शुरू कर दें। You can't do that because it's not sustainable, specifically in US where most of your food is imported from other countries. तो हर नेशन स्टेट का कॉमन इंटरेस्ट होता है कि उनका ओपन मार्केट हो, वो पीस रखें अपनी कंट्री में, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसीलिए कॉपरेशन का ज्यादा इम्पैक्ट है। लिबरलिज्म का लेकिन बैरियर्स भी है, जो रॉबर्ट क्योहेन बोलेंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल रोमियो एंड जूलियट, दे शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ लव, येट देयर स्टोरी, उनका स्टोरी ये बताता है कि एक्टर्स माइट फेल even if their interests are identical, if the structure in which they live is not or the system in which they live is not um, accommodating them. So it's necessary to change that structure, कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतना ज्यादा हो जाए कि दो कंट्रीज आपस में वॉर करने का सोचे भी नहीं। इंडिया और चाइना का हम सुन रहे हैं गलवान वैली का पिछले 1.5-2 साल से, बट एट द सेम टाइम
Most of the even Indian IPL is funded by, and so many Indian companies and startups are funded by China. So a political skirmish need not be an economic warfare. अगर आप वॉर कर लोगे प्रॉपरली देन इट इज पॉलिटिकल भी कट हो जाएगा, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल सब कट हो जाएगा. सो कॉमन इंटरेस्ट जो है अब लोगों का चेंज हो रहा है, कंट्रीज का चेंज हो रहा है. जैसे वी हैव टू क्लीन द एनवायरनमेंट, हैव क्लाइमेट डील्स. अभी रिसेंटली न्यूज में आया कि ओजोन लेयर जो है वो हील हो रहा है. यू हैव टू प्रिवेंट न्यूक्लियर डिजास्टर्स. एंड जितना भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, जहां जहां भी सिविल वॉर हो रहा है, you have to. What is the reason why India distributed co-vaccines to so many other African countries as a development aid during COVID? COVID was the biggest example of a pandemic where it was not one country fighting itself or one country fighting the other. Jo, at the same time, there was a barrier to this. American companies, pharmaceutical companies, Pfizer or Moderna, जिन्होंने अपना वैक्सीन बनाया था, they did not share the patent of it with the American government. They did not share it. So Pfizer और Moderna कैसे बनता है इसका structural recipe किसी को नहीं पता. They didn't share it. जबकि pandemic में करना चाहिए था. At the same time, लोगों के obviously if you have a nuclear disaster, उसका nuclear disaster का कोई circumference नहीं होता है. So it is going to affect. It is going to bombard and affect a lot of countries. Vietnam war हुआ तो उसमें Laos और Cambodia का भी बहुत loss हुआ. In fact, they became the battlegrounds in themselves. But the terminology that is used is Vietnam war. नहीं. Equal destruction of Laos and Cambodia also took place. हाँ, but actors might lack information about एक दूसरे का क्या. Actors का मतलब country है यहाँ पे. It's not individual, it's not the world system. तो actors may lack information about one another's true preference. तो वो शायद cheat कर सकते हैं. या फिर free riders जो होते हैं, जो just फायदा लेने के लिए ब्लॉग्स बना रहे हैं, उनसे भी वो ट्रस्ट के इश्यूज हो सकते हैं. लेकिन when you have economic transactions at that point of time, तो कोई भी कंट्री वॉर करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगा. तो global economy was their second assumption. The third assumption that liberals had was the belief that information and communication is very important and it can play an essential role. Now we all are migrants. We all are migrants. Not because of migration ka matlab, it is not limited to leaving the place of birth and having a different place of residence. We all are migrants. The moment you use Instagram or Twitter or Facebook, you are migrating to a different online space, which does not have the same kind of borders which a nation state will have. It is migration. When you get to know about so many other things which are happening all over the world. अभी plane crash हुआ यूक्रेन में couple of hours before, and everyone knows about it. And 24th of February will be the anniversary of this Russia-Ukraine war. We know about it, but we have never been to Ukraine, we have never been to Russia, but we know about it. So, अब knowledge or communication भी बढ़ गया है. There is a loop system. You can also one-sided communication नहीं है. Right? You can also rebuke, rebuttal, give your views and everything, and you can be in touch with the decision and lawmakers. Just for example, we all know about Greta Thunberg. Greta Thunberg किस country से है? Sweden. Very good. So she is in like Sweden.
शी इज स्वीडिश एंड अभी जर्मनी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है against the lignite coalfield expansion, which is going to be a natural disaster. But so Greta Thunberg came from Sweden to Germany and she was arrested by the police today. अब इसके बारे में it is happening where in Germany, but we know about it because media has opened up doors, social doors, cultural doors, where you're migrating all the time in the online sphere. And there's a network society. It is a global village that has been created. We are interconnected with each other. So अब क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के इतने सारे रास्ते हैं, तो ये जो एक दूसरे पे ट्रस्ट का जो बैरियर था वो आपका खत्म होगा और चीटिंग, फ्री राइडिंग और लॉस, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन डिसाइड ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। उसके बाद लिबरल्स ये भी मानते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उनका जो भी कैपेसिटी हो, लेकिन वो नेशन स्टेट्स को कोऑपरेट करने का एक मुद्दा जरूर देती हैं, भले ही उसमें कितने भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हों। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूएन है, यूरोपियन यूनियन है, नेटो है। जस्ट थिंक अबाउट इट, यूके जॉइन्स यूरोपियन यूनियन इन 1993 थ्रू अ ट्रीटी कॉल्ड एज maastricht ट्रीटी, और उसको ब्रेग्जिट करने में 4-5 साल लग गए। सो इट इज नॉट वेरी इजी टू ब्रेक आउट ऑफ यूनियन ऑल्सो, और उसका कमर्शियल कॉस्ट उसको काफी होगा। इट इज नॉट लेस देन अ वॉरफेयर बिकॉज अब जो है, फॉर एग्जाम्पल whenever I went to London, तो I could use euros or pounds, both of these currencies interchangeably. But now in London, I'll have to use a pound, and in Europe, euro. Pehle, I remember ki if someone wanted to go to just like, I'm sitting in UK, I just want to have a slice of pizza, let me go to Italy. They can. Just say you can take a flight if your capital allows and go and eat pav bhaji in Mumbai. There's no barrier or mobility or restriction. Many Europeans used to migrate and live in UK, and many of the British used to migrate and live in European countries. But there will be checks and balances now. तो किसी भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, और अब जो है फॉर एग्जांपल बीबीसी भी अगर आप चाहे कि अलग अलग कंट्रीज में उसका चैनल ब्रॉडकास्ट हो, बीबीसी वर्ल्ड, तो उसको हर कंट्री से लाइसेंसिंग का परमिशन लेना पड़ेगा, जो पहले उसको यूरोपियन यूनियन के टाइम पे नहीं लेना था, विच इज अगेन जॉब कट्स फॉर बीबीसी। तो आपके ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूएन हो, यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो, या फिर आपके इनफॉर्मल हो on the basis of your norms या rules या decision making process, ये सारी चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कॉन्सेप्ट जो क्योहेन देंगे बेसिकली विल बी अबाउट न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो न्यू मतलब नया, लिबरल इज डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिक, फ्री ट्रेड, इस पे बिलीफ, एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म तो ये बोलते हैं कि अब जो है ना ही सिर्फ एक कंट्री दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट इंस्टीट्यूशंस पे भी हम डिपेंडेंट हैं। जैसे वन ऑफ द रीजंस कि जब यूरोजोन क्राइसिस हुआ 2009-10 में, ग्रीस एंड इटली दे वर हार्डली हिट, बहुत खराब सिचुएशन थी। तो आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने, डब्ल्यूटीओ ने लोन्स दिए ग्रीस एंड इटली को, तो उनको एज अ रिजल्ट काफी ऑस्टेरिटी मेजर्स को प्रैक्टिस करना पड़ा। ऑस्टेरिटी मेजर्स की आपको अपना खर्चा कम करना है, तो सरकार अपना खर्चा कैसे कम करेगी? तो द फर्स्ट थिंग दे स्टॉप्ड वाज गिविंग पेंशन, कि पेंशन इज अ लायबिलिटी। सेकेंड इज वहां पे क्योंकि छोटी कंट्रीज हैं, सोशल वेलफेयर स्टेट हैं, तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, वो भी खत्म कर दिया। तो स्टेट स्पेंडिंग जो सारी चीजें हैं वो सारी खत्म की। जो आपकी ऑयल रिच गल्फ मोनार्कीज हैं उनको अभी टैक्सेशन के बारे में उतना सोचना नहीं है, बट मे बी आफ्टर 50 years दे हैव टू थिंक अबाउट इट। कुछ तो रीजन है ना कि सऊदी अरेबिया ने आज बोला कि हम नॉन यूएस डॉलर करेंसी में भी ट्रेड करेंगे, विच मीन्स कि हम रशिया के साथ भी ट्रेड करना चाहेंगे, हम ईरान के साथ मे बी।
but Iran and Saudi Arabia are competitors. But the point is कि अब आपका सिर्फ एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन नहीं है, आपके कंट्रीज में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशन है। तो रॉबर्ट जर्विस का ये कहना था कि म्यूचुअल बेनिफिशियल अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ अब सरकार दूसरी सरकार के साथ नहीं करती है, बट पॉलिसीज के थ्रू, लॉबिंग के थ्रू, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस दैट हैव कम जो bilateral ties को बनाती हैं। जैसे yesterday was the day when India appointed new ambassadors to Armenia, Azerbaijan, Saudi Arabia. हमारी जो all women troops है, they have been deployed in Sudan and South Sudan border. तो ये सारी चीजें, why is this happening? This is all about bilateral ties and improving bilateral ties of one country with the other. And ये सारे आपके अलग अलग institutions, NGOs भी आपके सरकार के साथ individually involved हैं। लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म एक इंडिविजुअल को अच्छा मानता है, कोऑपरेशन के हकदार में मानता है कि इंडिविजुअल्स कोऑपरेट कर सकते हैं, और वो ये नहीं देखता है कि सरकार मतलब एक एंटिटी, मतलब सरकार का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है या प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट नहीं होता है। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ इट, सो मेनी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज ऑफ इट। तो उनके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट अटैक। इकोनॉमिक कोऑपरेशन विल गिव मोर प्रॉफिट, और इंटरनेशनल सिस्टम को वो एक दूसरे के बीच डिपेंडेंट एक्शंस देखते हैं। और जो डिजायरेबल प्रोसेस जो है वो है पीस का, कि दे वांट पीस इंस्टेड ऑफ हैविंग वॉरफेयर। सो रॉबर्ट क्योहेन बिकेम द स्कॉलर जिन्होंने न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये बेसिकली रियलिज्म आया, रियलिज्म के बाद लिबरलिज्म आया, लिबरलिज्म के क्रिटिक में न्यो रियलिज्म आया, और न्यो रियलिज्म के क्रिटिक में फिर आपका न्यो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म आया, which was given by Robert Cohen, American academic. इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के तहत ही समझा, और उन्होंने 1984 में एक बहुत ही फेमस किताब लिखी, आफ्टर हेजेमनी। हेजेमनी जो टर्म है वो एंटोनियो ग्राम्सी ने कॉइन किया था। He was an Italian communist who was jailed during the time of Mussolini. And जब उसके ऊपर केसेस चल रहे थे तो in the court everyone used to say about Gramsci कि ये इतना तेज है कि इसके दिमाग को बंद करना पड़ेगा. The mind functions at a very high rate. And Gramsci was someone who created the term hegemony. कि hegemony is not one dominant power, it is a group of dominant powers. Your domination can be on the basis of your power system, caste, race, class, anything. आज Facebook का hegemony है. Facebook is not a country. मतलब Meta, actually. Buying out WhatsApp and Insta and all of it. So, hegemony can be economic, political, all of it. And इन्होंने बताया कि किस तरीके से institutions have become very prominent and powerful in terms of creating any kind of bilateral ties. और ये 1970s से change हो रहा है। और न्यू लिबरलिज्म ने ये चीज को बहुत ध्यान में रखा कि एक दूसरे से कॉपरेट करके स्टेट्स तो इकोनॉमिकली प्रॉफिट भी करेंगी, बट दे विल आल्सो लर्न हाउ टू ट्रस्ट एंड दे विल एस्केप दिस एंटायर अबैंडनमेंट सिंड्रोम या चीटिंग या एस्केप मैकेनिज्म और ये सारी चीजें। तो एक थर्ड पार्टी जो है अगर वो मॉनिटर कर रहा है किसी भी तरीके का अग्रीमेंट तो वो बेहतर है। अब वो थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत पावरफुल ना हो, लाइक यूएन, लेकिन एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो है, रिकमेंडेशन तो दे रहा है। इट इज बेटर देन नो थर्ड पार्टी हैविंग रिकमेंडेशन, राइट? लाइक यू एंड योर सिस्टर और ब्रदर दे आर फाइटिंग, यू नो, मतलब एकदम कार मार धार टाइप्स हो जाएगा, लेकिन द मोमेंट योर फादर कम्स और मदर कम्स एकदम गले लग जाएंगे, ओए एकदम, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। सो देयर इज a third party involvement which actually leads to relative gains.
रियलिज्म बात करता था एब्सोल्यूट गेन का, कि हमारा प्लस तभी होगा जब सामने वाले का माइनस होगा। लेकिन न्यू लिबरलिज्म बात कर रहा है ऑफ रिलेटिव गेन, कि दोनों का गेन हो, रिलेटिवली दोनों का गेन हो, वेलफेयर हो, रिलेटिवली वेलफेयर हो। और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब because of the rise of media, your domestic politics is not so very different from your international politics. Whatever you do internationally will have repercussions in your domestic politics. तो इसीलिए जरूरी है कि हाँ आपका मिलिट्री पावर रहे, but you don't have to exercise it when there are better ways of solving a crisis. And why to cause a crisis? Why to cause a crisis? So political systems जो हैं, जो liberal IR theory में rooted हैं, वो military power को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती. They don't give so much of importance to military power. They give more importance to negotiations. जो इंडिया और चाइना में political back and forth हो रहा है negotiation, वो उसको ज्यादा importance देंगी. तो प्राइमरी गोल इनका यही है कि आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है जहां हर स्टेट एक अपने आप को सुरक्षित समझे और फॉरेन ट्रीटीज पूरा साइन करे, कोई फॉरेन थ्रेट ना उसको फील हो, क्योंकि तभी इंडिविजुअल लिबर्टी भी इंसान का अकोमोडेट होगा. अब यूक्रेन में, रवांडा में, पेरू में, ब्राजील में, जहां ये सार प्रोटेस्ट या सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे क्या इंडिविजुअल लिबर्टी है? कोई लिबर्टी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है. इट इज कंप्लीटली ओवर. तो अगर आप इनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल सिटीजन्स का भला करना चाहते हैं, आपके जो इंस्टीट्यूशंस जो इन्वॉल्व हैं उनके साथ भला करना चाहते हैं, तो लिबरल स्टेट्स जो है आपस में लड़ाई नहीं करेंगे. आप इलेक्शंस करो, आस्क पीपल टू वोट, डू अ रेफरेंडम, check the behavior of the government, have a loop system in which the government can be held accountable. और पॉलिटिकल पावर को अलग अलग लेवल पे डिवाइड करना चाहिए जो है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये सारा, ताकि किसी एक इंसान के पास ही पूरा अल्टीमेट पावर नहीं हो. तो इफ वी कंपेयर ओवर रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, तो हमने ये सीखा कि रियलिज्म टॉक्स अबाउट सोवरेनिटी, कंट्री का बॉर्डर, पॉलिटिक्स, इंडिपेंडेंस, मिलिट्री पावर पे बहुत ध्यान देता है, ज्योग्राफी पे बहुत ध्यान देता है. टिम मार्शल एक ऑथर हैं जिन्होंने काफी इंटरेस्टिंग किताबें ज्योग्राफी की लिखी हैं, बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ IR, जैसे प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड मैप के सिस्टम से वो बहुत बताते हैं. रियलिज्म नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ध्यान देता है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के ऊपर भी ध्यान देता है, बट फॉर द मिलिट्री माइट. पॉपुलेशन डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट स्ट्रेंथ को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बट एब्सोल्यूट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में. लिबरलिज्म जो है पावर पे उतना पावर मतलब नहीं देता है, प्रिंसिपल्स को ज्यादा ध्यान में देता है कि फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, डेवलपमेंट, कॉपरेशन, एजुकेशन, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड अग्रीमेंट्स एंड अ फ्री मार्केट. जैसे पेप्सिको इज ट्राइंग टू नाउ इन increase its production capacity in India. कलाशनिकोव राइफल्स जो आपके रशिया के हैं वो यूपी में प्रोड्यूस होने वाले हैं. दिस इज इंटरडिपेंडेंस. हम फॉरेन पावर्स से, रशिया, फ्रांस, US से मिलिट्री, इजराइल से मिलिट्री आर्ममेंट्स खरीदते हैं. दिस इज इंटरडिपेंडेंस. मोदी ने, आई रिमेम्बर, आज से कई साल पहले ये डेडलाइन दिया था, दो डेडलाइन इज द रॉन्ग वर्ड, एक टाइमलाइन दिया था कि 2025 तक इंडिया का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कि वी विल आल्सो मेक मिलिट्री आर्मामेंट्स एंड सेल इट टू अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया. तो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को हमने सेल किया, दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल. तो liberalism then gives emphasis on these things, on the entire facet of freedom, human rights and development. अब जहां तक बात हुई कि बहुत बार ये लिबरल्स और ये सारा क्रिटिक होता है लिबरल्स के खिलाफ, सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन, दैट इज नॉट द IR डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म, राइट?
तो इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरलिज्म 3 चीजों पे बहुत ध्यान देता है। पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट, और तीसरा है फ्रीडम, ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट। इन 3 चीजों के ऊपर, which is about institutions and state dependent on each other. आपका सिर्फ सरकार नहीं है, सरकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, which also play a very strong role in all of this. So today's class is here and I am stopping the recording.